ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਗਿਲਜ਼ ਮੈਂਟੋਰ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। 3 ਨਵੰਬਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, WhatsApp, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ IBPS, RRB, JEE ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, SI ਔਰ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਬੈਚਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਚਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਰੋਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਐਨਰੋਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿੰਪਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਲਿੰਕ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਜਾਂ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ MCQ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ MCQ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਸਿਟੀਜ਼ ਡੇ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਰਲਡ ਸਿਟੀਜ਼ ਡੇ ਕਿਸ ਦਿਨ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਥੀਮ ਰਹੀ ਵੈਲਿਊਇੰਗ ਆਵਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼। ਵੈਲਿਊਇੰਗ ਆਵਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼। 111th ਬਰਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਮੀ ਜੇ ਬਾਬਾ ਦੀ। ਹੋਮੀ ਜੇ ਬਾਬਾ ਜੋ ਕਿ ਫਾਦਰ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਫਾਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੋਮੀ ਜੇ ਬਾਬਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ 111ਵੀਂ ਬਰਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀ ਗਈ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ। 1909 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਥ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 1954 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਓਨਲੀ ਵੂਮਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਓਨਲੀ ਵੂਮਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂੰ। 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984। ਨੈਕਸਟ ਹੈ 15th ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ। 15ਵਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈੱਡ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਕੌਣ ਨੇ? NK ਸਿੰਘ। 15th ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਰੈਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਬਮਿਟ ਕਰਨਗੇ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ। 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਰਟੀਕਲ 280 ਦੇ ਅੰਡਰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ। 5 ਸਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2021-22 ਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2025-26 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਸਰਵੇ। ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਸਰਵੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? NSO ਦੁਆਰਾ। NSO ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਆਫਿਸ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਆਫਿਸ NSO ਦੁਆਰਾ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਸਰਵੇ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਲੀ ਬॉय। ਗਲੀ ਬॉय ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਮੂਵੀ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗਲੀ ਬॉय ਵੋਨ ਬੈਸਟ ਮੂਵੀ ਅਵਾਰਡ ਐਟ 14th ਐਨੂਅਲ ਏਸ਼ੀਅਨ ਫਿਲਮ ਅਵਾਰਡਸ। 14th ਐਨੂਅਲ ਏਸ਼ੀਅਨ ਫਿਲਮ ਅਵਾਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਸਟ ਮੂਵੀ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਕਿਹੜੀ ਮੂਵੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਗਲੀ ਬॉय ਮੂਵੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 24th ਮਾਲਾਬਾਰ ਨੇਵਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਾਬਾਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਨੇਵੀ ਦੀ, ਮਾਲਾਬਾਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਇਸ ਨੂੰ 2 ਫੇਜ਼ਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਸਾਲ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਟ ਕਰਨੀਆਂ। ਪਹਿਲੇ 3 ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਚੌਥੀ ਕਿਹੜੀ ਐਡ ਹੋਈ ਹੈ? ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। 2 ਫੇਜ਼ਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਹਿਲਾ ਫੇਜ਼ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਬੇ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਫੇਜ਼ ਜੋ ਫੇਜ਼ 2 ਹੈ ਉਹ ਅਰੇਬੀਅਨ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਮਿਡ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਟ ਕਰਨੀਆਂ? ਇੰਡੀਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, USA ਔਰ ਜਾਪਾਨ। ਇਹਨਾਂ 4 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਨੇਵੀ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਟ ਕਰੇਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਵੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਇੱਕ ਐਂਟੀ ਸ਼ਿਪ ਮਿਸਾਈਲ INS ਕੋਰਾ ਤੋਂ ਟੈਸਟੀਫਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਂਟੀ ਸ਼ਿਪ ਮਿਸਾਈਲ INS ਕੋਰਾ ਬੇ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਟੈਸਟੀਫਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨੈਕਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਸਲਰ ਟਰਨਡ ਮਿਕਸਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ ਫਾਈਟਰ ਰੀਤੂ ਫੋਗਾਟ ਰੈਸਲਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੀਸਰੀ MMA ਮਿਕਸਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਜਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਇਹ MMA ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਲੋਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ CEO ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ CEO ਕੌਣ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ? ਆਲੋਕ ਸਿੰਘ। ਜਸਟਿਸ BL ਭੱਟ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ NCLAT ਦੇ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਐਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਐਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ। ਅਦੀਲੇ ਸੁਮਨਰੀਵਾਲਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਐਥਲੈਟਿਕ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੀ ਇਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਟਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਐਥਲੈਟਿਕ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ। ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ ਗੇਲ ਐਸੇ ਪਹਿਲੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਬਣੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ T20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਛੱਕੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, 1000 ਸਿਕਸਿਸ। ਫਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਬਣੇ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ ਗੇਲ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਯੂਨਿਟੀ ਡੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨਿਟੀ ਡੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਏਕਤਾ ਦਿਵਸ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਦਿਵਸ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਏਕਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ 'ਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਹੋਮੇਜ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ। 145ਵੀਂ ਬਰਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਮੈਮੋਰੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਉਸ ਪਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਟੋਲੈਸਟ ਸਟੈਚੂ ਸਿਚੁਏਟਡ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਸਿਚੁਏਟਡ ਹੈ? ਕੇਵਾੜੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੇਵਾੜੀਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕੇਵਾੜੀਆ ਵਿਲੇਜ ਨਰਮਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ, ਨਰਮਦਾ ਰਿਵਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸਿਚੁਏਟਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਨੋਗਰੇਟ ਕੀਤੀ? ਸੀ ਪਲੇਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇਨੋਗਰੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋ ਕਿ ਸਟੈਚੂ ਆਫ ਯੂਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਵਾੜੀਆ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਬਰਮਤੀ ਰਿਵਰ ਫਰੰਟ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਸਪਾਈਸ ਜੈਟ ਦੀ ਸਬਸਿਡਰੀ ਸਪਾਈਸ ਸ਼ਟਲ ਦੁਆਰਾ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਆਰੋਗਿਆ ਵਨ ਇਨੋਗਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਆਰੋਗਿਆ ਕੁਟੀਰ ਵੀ ਇਨੋਗਰੇਟ ਕੀਤਾ ਸਟੈਚੂ ਆਫ ਯੂਨਿਟੀ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਜੰਗਲ ਸਫਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਅੰਡਰ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਜੂਲੋਜੀਕਲ ਪਾਰਕ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜੰਗਲ ਸਫਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਨੋਗਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਏਕਤਾ ਕਰੂਜ਼ ਫੈਰੀ ਬੋਟ ਸਰਵਿਸ ਇਨੋਗਰੇਟ ਕੀਤੀ। ਯੂਨਿਟੀ ਗਲੋ ਗਾਰਡਨ ਨੂੰ ਇਨੋਗਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਕਟਸ ਗਾਰਡਨ, ਏਕਤਾ ਮੋਲ ਚਿਲਡਰਨ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨੋਗਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਲੱਸ ਗੋਇਡਿਸਟਿਕ ਡੋਮ ਅਵੇਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨੋਗਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨੋਗਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨਿਟੀ ਡੇ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ 8ਵੀਂ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 8th ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੀਟਿੰਗ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੰਡੀਆ ਕੰਡਕਟਡ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੀਟਿੰਗ 8th ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਦ ਮੈਕਸੀਕੋ। ਕੈਪੀਟਲ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਿਟੀ ਹੈ, ਕਰੰਸੀ ਇੱਥੇ ਪੀਸੋ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੇਰਲਾ ਨੇ ਇੰਡੈਕਸ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਚ ਇੰਡੈਕਸ? ਬੈਸਟ ਗਵਰਨਡ ਸਟੇਟ ਦਾ ਇੰਡੈਕਸ, ਬੈਸਟ ਗਵਰਨਡ ਸਟੇਟ ਇੰਡੈਕਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਬਲਿਕ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਂਟਰ ਦੁਆਰਾ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਚੇਅਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫੋਰਮਰ ਇਸਰੋ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇੰਡੀਅਨ ਸਪੇਸ ਰਿਸਰਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਪੇਸ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸਰੋ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਸਤੂਰੀ ਰੰਗਨ, ਫਾਰਮਰ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਕਸਤੂਰੀ ਰੰਗਨ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੇਰਲਾ ਨੇ ਟੌਪ ਕੀਤਾ, ਦੂਸਰੀ ਪਲੇਸ 'ਤੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਔਰ ਥਰਡ ਪਲੇਸ 'ਤੇ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਬਿਗ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਰਹੇ, ਉੜੀਸਾ ਔਰ ਬਿਹਾਰ ਰਹੇ। ਸਮੋਲ ਸਟੇਟਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਆ ਦੁਆਰਾ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਐਂਡ 'ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਰਹੇ। ਯੂਟੀਜ਼ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੁਆਰਾ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਲਾਸਟ ਪਲੇਸ 'ਤੇ ਦਾਦਰਾ ਐਂਡ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣਨਗੇ। ਪਲੱਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਪਬਲਿਕ ਅਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸਰੋ ਦੇ ਫਾਰਮਰ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਕਸਤੂਰੀ ਰੰਗਨ ਦੁਆਰਾ। ਕਸਤੂਰੀ ਰੰਗਨ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ IIT ਰੁੜਕੀ ਦੁਆਰਾ ਵਰਲਡ ਦਾ ਫਸਟ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਬਾਇਓਸੈਂਸਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸੋਡੀਅਮ ਡਿਸਾਈਡਲ ਸਲਫੇਟ ਨੂੰ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤ੍ਰਿਵੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਦੁਆਰਾ ਦੇਵ ਭੋਗ ਸਵੀਟਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੇਵ ਭੋਗ ਸਵੀਟਸ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੁਆਰਾ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ SC ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।
डॉक्टर बी आर अंबेडकर पोस्ट मैट्रिक SC स्कॉलरशिप स्कीम नूं लॉन्च किया गया पंजाब के चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह द्वारा। तमिलनाडु गौरमेंट द्वारा 7.5% रिजर्वेशन की गई है मैडिकल एडमिशन के किन्ना बच्चों के लिए गौरमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए। बेसिकली जेडे स्टूडेंट्स गौरमेंट स्कूल के स्टडी कर रहे हैं या कह सकते हैं 6वीं तो लैके 12वीं क्लास गौरमेंट स्कूल के जिसने की है उन्होंने अगर वो नीट की तैयारी करते हैं एग्जाम देंगे ने तो उन्होंने 7.5% रिजर्वेशन दी जाएगी मैडिकल एडमिशन के। नैक्सट है तेलंगाना ऐसी तीसरी स्टेट बनी है इंडिया की जिसने इलैक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को लॉन्च किया दिल्ली और गुजरात तो बाद। इंडिया का पहला टायर पार्क बनाया जा रहा है कोलकाता वेस्ट बंगाल के टायर पार्क बनाया जा रहा है। पन्ना टाइगर रिजर्व इंपोर्टेंट न्यूज़ है पन्ना टाइगर रिजर्व जो कि MP का है उसनों यूनैस्को बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया। यूनैस्को बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया गया बाय मैन एंड बायोस्फीयर। इस दे नाल ही अगर इसनों ऐड कर दिए तो इंडिया के विच टोटल 12 बायोस्फीयर रिजर्व बन चुके हैं। नैक्सट है अंबाला सिटी जो कि हरियाणा के विच है। अंबाला सिटी हरियाणा के विच है। इसने सिंगल यूज प्लास्टिक नूं बैन किया है और पॉलीथीन बैग्स नूं भी बैन किया है। नैक्सट है स्पोर्ट्स अवार्ड के विच आपां स्पोर्ट्स परसन के नाम डिस्कस कर रहे सी। अर्जुन अवार्ड्स 27 लोगों को दिता गया है। याद रखना है 27 के विचों 14 आप पहले डिस्कस कर लेने बाकी 7 नाम डिस्कस कर रहे हैं। अतनु दास आर्चरी के लिए, अदिति अशोक गोल्फ के लिए, दिव्या काकरन रैसलिंग, राहुल अवारे भी रैसलिंग। अतनु दास आर्चरी, अदिति अशोक गोल्फ, दिव्या काकरन और राहुल अवारे रैसलिंग दे विच। कले सरीका सुधाकर खो खो के लिए, दीपक कबड्डी के लिए और दत्तू बबन भोकनाल रोइंग के लिए इन्हों अर्जुन अवार्ड दिता गया सी। ठीक है जी, नाम इंपोर्टेंट बनने याद रखने ने। नैक्सट चलते हैं अज की फर्स्ट न्यूज़ के वाल चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विच डे इज़ ऑब्जर्वड एज इंटरनेशनल डे टू एंड इंप्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट। इंटरनेशनल डे टू एंड इंप्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट किस दिन ऑब्जर्व किया गया? इस दिन नूं 2 नवंबर नूं, यानी कि कल के दिन इस दिन नूं ऑब्जर्व किया गया। ठीक है जी, इस दिन के रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, डिटेल दे विच डिस्कस करांगे। प्लस 2 दिन अपने स्किप हो गए सी, वो भी डिस्कस करांगे। सब तो पहले 29 अक्तूबर नूं 2 दिन ऑब्जर्व किए गए। सब तो पहले इंटरनेशनल इंटरनेट डे ऑब्जर्व किया गया 29 अक्तूबर नूं 2005 तो इसनूं हर साल ऑब्जर्व किया जा रहा है। ठीक है जी, इस तो इलावा वर्ल्ड सोरेसिस डे, पी साइलेंट होंगे, सोरेसिस एक बीमारी है, स्किन डिसीज़ है बेसिकली एक। वर्ल्ड सोरेसिस डे ऑब्जर्व किया गया 29 अक्तूबर नूं, जिसकी थीम रही है सोरेसिस इट्स नॉट कॉन्टेजियस, यानी कि यह कह सकते हैं कॉन्टेजियस का मतलब होंगे कि जी छूआछूत के तरीके नहीं छूआछूत के तरीके फैलदियां ने जी बीमारियां, उन्होंने कॉन्टेजियस कहा जाता है कि जी सोरेसिस बीमारी है यह कॉन्टेजियस नहीं है। इस बीमारी के रिलेटेड अवेयरनैस फैलाने के लिए सोरेसिस डे, वर्ल्ड सोरेसिस डे ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है जी, हम जो आप दिन डिस्कस कर रहे थे इंटरनेशनल डे टू एंड इंप्योरिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट, इस दिन 2 नवंबर को ऑब्जर्व किया गया। ठीक है, 2 नवंबर को ऑब्जर्व किया गया, पर इस दिन को ऑब्जर्व करने के लिए एक वर्ल्ड प्रैस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की जाएगी। वर्ल्ड प्रैस कॉन्फ्रेंस 9 तो लैके 10 दिसंबर को ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जिसनों यूनैस्को को होस्ट कर रही है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनैस्को इसनों को होस्ट कर रही है नीदरलैंड के नाल मिलके, नीदरलैंड कंट्री के नाल मिलके की सैलीब्रेट करने के लिए 2 इंपोर्टेंट दिन सैलीब्रेट करने के लिए एक आप डिस्कस किया सी वर्ल्ड प्रैस फ्रीडम डे 3 मई को ऑब्जर्व किया गया सी, और एक जिहड़ा यह दिन है इन्हां दोनों दिनों ऑब्जर्व करने के लिए जॉइंटली सैलीब्रेट करने के लिए यूनैस्को नीदरलैंड के नाल मिलके को होस्ट करेगी वर्ल्ड प्रैस कॉन्फ्रेंस। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है विच स्टेट डू नॉट ऑब्जर्व्ड इट्स फॉर्मेशन डे ऑन 1 नवंबर।
फर्स्ट नवंबर एक ऐसा दिन है जिस दिन काफ़ी ज़्यादा स्टेट्स ਨੂੰ ਫਾਰਮੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਈਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੇਟਸ, ਦੋ ਇਕੱਠੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੇਟਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੇਟਸ 1 ਨਵੰਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਣੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ? फोर्थ ऑप्शन उड़ीसा कदों बनाई गई सी? 1 अप्रैल ਨੂੰ बनाई गई सी। ਤੁਹਾਨੂੰ याद होएगा 1 अप्रैल ਨੂੰ ਆਪਾਂ उत्कल दिवस ऑब्जर्व करते हैं। उत्कल दिवस उड़ीसा के फॉर्मेशन डे ਨੂੰ उत्कल दिवस के नाम तो जानिया जाता है और इसनों 1 अप्रैल ਨੂੰ ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, 1 नवंबर ਨੂੰ अगर आप गल करिए डिटेल दे विच तो काफ़ी ज़्यादा स्टेट्स ने जी 1 नवंबर ਨੂੰ बनाई गई सी। न्यूज़ है कि जोड़े राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने की दित्तियां ने, बधाइयां दित्तियां ने कह सकते हैं। किहड़ी स्टेट नूं? हरियाणा, पंजाब, MP, छत्तीसगढ़, करनाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, अंडेमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप और पुडुचेरी ऑन देयर फॉर्मेशन ऑन 1 नवंबर। 1 नवंबर ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ठीक है, हरियाणा पंजाब ਨੂੰ अगर आप गल करिए 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ हमेशा डिस्कस करते ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। पंजाब GK ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ काफ़ी बार ਤੁਸੀਂ डिस्कस ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ कि पंजाब ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਤਾਂ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਬੇਸਿਸ ਤੇ डिवाइड किया गया पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश ਦੇ ਵਿੱਚ। पंजाब और हरियाणा ਨੂੰ स्टेट बना दिता गया सी और हिमाचल प्रदेश ਨੂੰ उस टाइम UT बनाया गया सी। UT ਜਿਹੜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ UT ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਮਿਲਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ MP 1956 ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਈਅਰ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸਿਮਿਲਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਟੈਟਿਕ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਰਸਟ ਸਟੇਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ दो क्वेश्चन पूछे जा सकते वैसे तो कि जी फर्स्ट स्टेट लैंगुएजिस बेसिस ते केड़ी बनाई गई सी? तो याद रखना है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश पहली ऐसी स्टेट सी जिहड़ी लैंगुएज बेस ते बनाई गई सी। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसनूं केड़ी कमेटी द्वारा रिकमेंड किया गया सी कि जिहड़ी इंडिया दी स्टेट्स ने उन्होंने लैंगुएज बेस ते डिवाइड किया जा सके? सब तो पहले केड़ी कमेटी द्वारा? तो याद रखना है धर कमीशन द्वारा। डिस्कस किया होएगा तुसीं पॉलिटी दे विच या फिर इंडियन जियोग्राफी दे विच भी काफ़ी बार दस्सिया जाता है। धर कमीशन, धर कमीशन ऐसा कमीशन है जिस दी रिकमेंडेशन दे उत्ते इंडिया नूं दे विच जिहड़ी स्टेट्स ने उन्होंने लैंगुएज बेसिस ते डिवाइड किया गया सी। ठीक है, इस तो बाद फजल कमीशन भी आया सी, वो भी याद रखना है, पर इंपोर्टेंट रहेगा धर कमीशन। धर कमीशन के बेसिस के उत्ते इंडिया नूं डिवाइड किया गया सी। नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट इज़ रोंग अबाउट ब्रह्मोस मिसाइल? ब्रह्मोस मिसाइल की अगर आप गल करिए तो किहड़ी स्टेटमेंट इस दे रिलेटेड रोंग है? ब्रह्मोस मिसाइल एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, करेक्ट है। फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है कि इसनूं फायर करो, टारगेट सैट करके तो भुल जाओ, यानी कि ये जाके टारगेट पर हिट करेगी। फॉरगेट मिसाइल स्ट्राइक रेंज इसकी 290 तो लैके 450 किलोमीटर है। हाँ जी, इसनूं डेवलप किया गया सी रशिया की हैल्प के नाल, यानी कि अपना ऑप्शन होएगा नन ऑफ दीज। ब्रह्मोस मिसाइल एक ऐसी मिसाइल है जिसनों इंडिया और रशिया ने मिलकर डेवलप किया सी। इसका नाम इसे करके ब्रह्मोस है। इंडिया की ब्रह्मपुत्रा रिवर और रशिया की मोस्कोवा रिवर के नाम से इस मिसाइल का नाम रखा गया सी। न्यूज़ की है इस रिलेटेड न्यूज़ है कि इंडियन एयर फोर्स ने इसका टेस्ट किया। मैं दस्सिया सी तुहानूं जदों आपां रिसेंटली ब्रह्मोस का टेस्ट किया गया सी, नाइट टेस्ट किया गया सी उस टाइम, तो मैं आप डिस्कस किया सी कि जी ब्रह्मोस मिसाइल है एक ऐसी मिसाइल है जी लैंड तो भी फायर की जा सकती है, वाटर सबमरीन तो भी फायर की जा सकती है और एयर तो भी फायर की जा सकती है। तो इंडियन एयर फोर्स ने इसका एयर टेस्ट किया। ब्रह्मोस मिसाइल का एयर टेस्ट, एयर वर्जन का टेस्ट किया गया इंडियन एयर फोर्स द्वारा। कितों? याद रखांगे सुकोई एयरक्राफ्ट है इंडिया का, सुकोई फाइटर एयरक्राफ्ट द्वारा इसनूं टेस्ट किया गया और कित्थे किया गया? बे ऑफ बंगाल दे विच। टेस्ट फायर्ड बे ऑफ बंगाल दे विच। टेस्ट फायर्ड किहड़े एयरक्राफ्ट द्वारा? सुकोई द्वारा। किसने किया? इंडियन एयर फोर्स ने किया। ठीक है, रिसेंटली सुकोई 30 द्वारा एक होर मिसाइल भी टेस्ट फायर्ड की गई सी। किहड़ी मिसाइल सी? रुद्रम मिसाइल सी जिहड़ी इसनूं टेस्ट फायर्ड सुकोई 30 द्वारा किया गया सी।
नेक्स्ट है विच बैंक बिकम्स फर्स्ट बैंक, केड़ा ऐसा बैंक फर्स्ट बैंक बने टू गो लाइव एज ए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर FIP अंडर न्यू अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क ऑफ RBI। बेसिकली की होया सी कि रीसेंटली RBI द्वारा अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क जारी किया गया सी। इस दे अंडर पहला ऐसा केड़ा बैंक बनया जिसने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर सर्विसेज शुरू कीतियां ने। बेसिकली इस दे अंडर की किया जाएगा कि जेडे जिन्नी भी बैंकिंग फैसिलिटीज़ ने उन्होंने जेड़ा यूज़ करना काफ़ी ईजी हो जाएगा, एक अच्छे तरीके नाल हो जाएगा। केड़े बैंक द्वारा शुरू किया गया? इंडसलैंड बैंक द्वारा। सब तो पहले केड़े बैंक द्वारा इसनूं शुरू किया गया? इंडसलैंड बैंक द्वारा शुरू किया गया। ठीक है। अच्छा, इंडसलैंड बैंक ही ऐसा बैंक बनया सी जिसने करंट अकाउंट फैसिलिटी नूं शुरू किया सी मोबाइल बेस्ड करंट अकाउंट फैसिलिटी नूं शुरू किया गया सी रिसेंटली इंडसलैंड बैंक द्वारा। बाकी बैंक्स के रिलेटेड काफ़ी बार आप न्यूज़ डिस्कस कीतियां ने। HDFC बैंक की गल करते हैं, हम हार नहीं मानेंगे कैंपेन। शौर्य क्रेडिट कार्ड रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया गया सी। समर ट्रीट्स कैंपेन भी HDFC बैंक का है। ICICI बैंक की गल करते हैं, WhatsApp के उत्ते सर्विसिज शुरू करने वाला पहला बैंक बनया सी ICICI बैंक। ICICI बैंक की सैटेलाइट डाटा यूज़ करेगा। होम उत्सव ऑर्गेनाइज किया गया सी ICICI बैंक द्वारा। जिप ड्राइव इनिशिएटिव ICICI बैंक का है। इस तो इलावा अगर येस बैंक की गल करते हैं तो लोन ओवर सिक्योरिटीज़ एंड लोन इन सेकंड्स इनिशिएटिव येस बैंक दे ने। बैंक ऑफ बड़ौदा लैंडिंग ऑपरेशंस डिजिटाइज करने वाला सब तो पहला बैंक बनया सी। बैंक ऑफ बड़ौदा ने की किया सी कि जेडे लैंडिंग हुंदी है, बैंक मनी लैंडिंग करता जी उसनू करने वाला सब तो पहला बैंक बनया सी डिजिटाइज करने वाला पहला बैंक बनया सी बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट है हु हैज़ लॉन्च पंजाब नेशनल बैंक्स ऑल इंडिया CSR कैंपेन अगेंस्ट COVID-19। की है कि पंजाब नैशनल बैंक के एक कैंपेन लॉन्च किया गया ऑल इंडिया CSR कैंपेन। COVID-19 नूं रोकण दे लई इस कैंपेन नूं लॉन्च किया गया पंजाब नैशनल बैंक द्वारा। इस कैंपेन नूं किन्ना द्वारा लॉन्च किया गया? लॉन्च किया गया डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा। हैल्थ एंड फैमिली वैलफेयर मिनिस्ट्री इन्हां लवे, अर्थ साइंस मिनिस्ट्री है प्लस साइंस एंड टैक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है। ठीक है। डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा चांदनी चौक दिल्ली तो लोक सभा MP ने और इन्हां द्वारा इस इनिशिएटिव नूं लॉन्च किया गया। ठीक है जी। पीयूष गोयल की गल करते हैं, रेलवे मिनिस्टर ने। इस तो इलावा कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर ने। इस तो इलावा रिसेंटली इन्होंने 2 मिनिस्ट्रियां होर दित्तियां गईयां सी, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री और कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री। राम विलास पासवान लवे सीगियां मिनिस्ट्रियां, रिसेंटली इन्हों की डैथ हो गई सी। ये मिनिस्ट्रियां इस करके पीयूष गोयल जी नूं दे दित्तियां गईयां। तो राज्य सभा MP ने ये महाराष्ट्र तो। स्मृति ईरानी WCD मिनिस्टर ने, वूमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री प्लस इन्हां लवे टैक्सटाइल्स मिनिस्ट्री है। और अमेठी उत्तर प्रदेश तो लोक सभा MP ने। प्रकाश जावेदकर इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री इन्हां लवे, प्लस इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री और हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री है। राज्यसभा MP ने ये भी महाराष्ट्र तो। निर्मला सीतारमन फाइनेंस मिनिस्टर प्लस कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री होल्ड कर रहे हैं निर्मला सीतारमन। और निर्मला सीतारमन राज्यसभा MP ने निर्मला सीतारमन कर्नाटका तो। ठीक है जी। ये सारे फैक्ट्स याद रखने। नेक्स्ट है अमित पंगल इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। इस तरीके के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा एग्जाम के पूछे जा रहे हैं कि एक परसन अगर कोई स्पोर्ट्स परसन न्यूज़ के विच रहे तो उसको क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो किहड़ी स्पोर्ट्स के नाल रिलेटेड है। ठीक है। तो अमित पंगल किहड़ी स्पोर्ट्स के रिलेटेड ने? ये बॉक्सिंग के नाल रिलेटेड ने। अमित पंगल बॉक्सिंग के रिलेटेड ने। क्यों न्यूज़ के विच रहे ने? वैसे 3 एथलीट्स न्यूज़ के विच रहे ने, अमित पंगल प्लस संजीत और तीसरा नाम है आशीष कुमार। ये 3 परसनस ने की किया? गोल्ड मैडल जितया। किस चीज़ के विच गोल्ड मैडल जितया इन्होंने? एक इवेंट हैल्ड किया गया फ्रांस दे विच बॉक्सिंग टूरनामेंट ऑर्गेनाइज किया गया एलेक्सिस वेस्टाइन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूरनामेंट ऑर्गेनाइज किया गया। और
इंडिया के अमित पंगल, संजीत और आशीष कुमार तिन्ना द्वारा गोल्ड मैडल जितया गया। ठीक है जी, याद रखना। कोविड-19 तो बाद पहला ऐसा इवेंट है जिहड़ा ऑर्गेनाइज किया गया बॉक्सिंग का, और इस दे विच इंडिया ने गोल्ड मैडल जिते। इंपोर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। अच्छा, अर्जुन अवार्ड्स की अगर आप गल करते हैं, आप डिस्कस किए ने, काफ़ी बार डिस्कस कर लेने, तो बॉक्सिंग दे विच किन्ना ने अर्जुन अवार्ड जिते है? कमेंट बॉक्स के कोई दसेगा? बॉक्सिंग दे विच किन्ना ने जितया सी? मनीष कौशिक ने जितया सी। और अगर आप गल करते हैं लवलीना बोरगोहेन, मनीष कौशिक और लवलीना बोरगोहेन द्वारा बॉक्सिंग दे विच जितया गया सी अर्जुन अवार्ड। बैडमिंटन दे विच SS रनिके रेड्डी और दूसरा नाम सी चिराग शेट्टी। शूटिंग दे विच भी 2 पर्सन से। अगर आप गल करिए मनु भाकर और दूसरा नाम सी सौरभ चौधरी। हॉकी दे विच आकाशदीप सिंह और दीपिका। क्रिकेट ईजी है, चलो क्रिकेट मैं नहीं दस रहा, क्रिकेट कमेंट बॉक्स में तुसी दसोगे। नेक्स्ट है हू हैज़ लेड द इंडियन डेलीगेशन नू 2006 सैशन ऑफ गवर्निंग काउंसिल ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन IPU। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन बेसिकली डिफरेंट कंट्रीज़ की जी पार्लियामेंट है उन्होंने एक यूनियन है इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। उस यूनियन दी मीटिंग ऑर्गेनाइज की जा रही है 206वीं मीटिंग। बेसिकली इस मीटिंग नू इस करके ऑर्गेनाइज किया जा रहा है ताकि इस मीटिंग दे विच चेयरपर्सन ऑर्गेनाइज किए जा सकन इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन दे। ठीक है, तो इस मीटिंग दे विच इंडिया वालों किस परसन ने पार्टिसिपेट किया है? थर्ड ऑप्शन इंडिया के लोक सभा स्पीकर ओम बिरला ने। इंडिया के लोक सभा स्पीकर ओम बिरला द्वारा रिसेंटली इन्हों द्वारा ही ब्रिक्स की पार्लियामेंट्री फोरम मीटिंग के भी पार्टिसिपेट किया गया सी। G20 की पार्लियामेंट्री फोरम मीटिंग के भी इन्हों द्वारा ही पार्टिसिपेट किया गया सी। ओम बिरला लोक सभा स्पीकर ने कोटा राजस्थान तो लोक सभा MP ने। बाकी ऑप्शनस दे विच M वेंकैया नायडू इंडिया के वाइस प्रेजिडेंट ने, या कह सकते हैं राज्य सभा के चेयरमैन ने। राज्य सभा के एक्स ऑफिको चेयरमैन वाइस प्रेजिडेंट होंगे ने, और कौन ने? M वेंकैया नायडू। हरिवंश नारायण सिंह डिप्यूटी चेयरमैन ने राज्य सभा के डिप्यूटी चेयरमैन हरिवंश नारायण सिंह ने। रिसेंटली इन्हों री इलैक्ट किया गया सी, याद रखना है। रामनाथ कोविंद प्रेजिडेंट ने इंडिया के, और नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर वाराणसी उत्तर प्रदेश तो लोक सभा MP ने। इस तो इलावा M वेंकैया नायडू की कुछ बुक्स का नाम जरूर याद रखना है। लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग बुक नू रिलीज़ किया गया सी M वेंकैया नायडू द्वारा। दूसरी बुक याद रखनी है कि इन्हों के 3 साल के टर्म पूरे होने ते एक बुक रिलीज़ की गई सी, कनैक्टिंग कम्युनिकेटिंग एंड चेंजिंग। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर केरलाज हाईएस्ट लिटरेसी ऑनर 2020 एजुटाचन पुरस्करम। एक अगर गल करिए केरला का हाईएस्ट लिटरेसी अवार्ड है। अगर इंडिया का हाईएस्ट लिटरेसी अवार्ड की गल करते हैं तो किहड़ा है? साहित्य अकैडमी अवार्ड। आप डिस्कस करते होंगे। तो सिमिलर केरला का हाईएस्ट लिटरेसी ऑनर है, यह किहड़े परसन नूं दिता जा रहा है? इस ऑनर के लिए सिलैक्ट किया गया पॉल जचारिया नूं इस ऑनर के लिए सिलैक्ट किया गया। इस तो इलावा इस अवार्ड के विच प्राइज़ मनी याद रखनी है, 5 लाख रुपए की प्राइज़ मनी है। केरला का हाईएस्ट लिटरेसी ऑनर है पॉल जचारिया नूं दिता जा रहा है। मलयालम राइटर ने पॉल जचारिया। इस तो इलावा सिद्धार्थ मोहंती, ताशी गैल्सन और हरप्रीत सिंह, ये 3 नाम काफ़ी इंपोर्टेंट ने। इन्होंने रिलेटेड न्यूज़ ने डिस्कस करांगे। अपूर्व चंद्रा की गल करते हैं। अपूर्व चंद्रा इंडिया के लेबर एंड इंप्लॉयमेंट सैक्रटरी ने। इन्हों का नाम पहले डिस्कस किया होया है। रिसेंटली इन्हों ILO का चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया सी। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के चेयरपर्सन अपॉइंट किए गए सी अपूर्व चंद्र। ठीक है जी, जनेवा के हैडकुआटर है, 1912 के बनाई गई सी। सिद्धार्थ मोहंती की गल करते हैं। LIC द्वारा MD अपॉइंट किए जाएंगे सिद्धार्थ मोहंती। बेसिकली की होया कि बैंक बोर्ड ब्यूरो
बैंक बोर्ड ब्यूरो द्वारा LIC के नवे MD अपॉइंट करने के लिए सिद्धार्थ मोहंती का नाम रिकमेंड किया गया। सिद्धार्थ मोहंती का नाम रिकमेंड किया गया, हजे अपॉइंट नहीं किए गए। जो अपॉइंट किए जाएंगे उस तो बाद आप इन्हों दोबारा डिस्कस करांगे। ठीक है, जिस तरीके नाल दिनेश कुमार खारा का नाम आप डिस्कस किया सी, उन्हों का नाम भी बैंक बोर्ड ब्यूरो द्वारा रिकमेंड किया गया सी। बाद दे विच ये चेयरमैन अपॉइंट किए गए SBI के। ठीक है जी। ताशी गैलसन है जिहड़े इन्हों चेयरमैन अपॉइंट किया गया है 6th लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेह दा। लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेह दे चेयरमैन अपॉइंट किए गए ने ताशी गैलसन। हरप्रीत सिंह वूमेन ने एयर इंडिया के फर्स्ट वूमेन पायलट सीगे, इस करके इन्हों का नाम इंपोर्टेंट बनता है हरप्रीत सिंह का। एयर इंडिया के पहले वूमेन पायलट हरप्रीत सिंह अपॉइंट किए गए ने CEO ऑफ अलायंस एयर। आप कई बार डिस्कस किया है कि कई बार की होंगे कि परसन का नाम इंपोर्टेंट होंगे, ऑर्गेनाइजेशन इंपोर्टेंट नहीं होंगी। कई बार ऑर्गेनाइजेशन इन्नी इंपोर्टेंट होंगी है, परसन हजे इन्ना इंपोर्टेंट नहीं होंगे। ठीक है, दोनों ही केसिस दे विच अपनी न्यूज़ इंपोर्टेंट बनती है। सिमिलर तरीके नाल इत्थे हरप्रीत सिंह का नाम इंपोर्टेंट है क्योंकि यह एयर इंडिया के पहले वूमेन पायलट सीगे। यह CEO अपॉइंट किए गए ने अलायंस एयर दे। नैक्सट है नैशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन NSDC इंडिया गवर्नमेंट का स्किल डेवलपमेंट मिशन है। इस मिशन के अंडर टारगेट है कि इंडिया के जिन्ने भी परसनस ने उन्होंने स्किल के तौर पर डेवलप करना है। और इस दे लई की किया गया, कोलैबोरेशन की गई है। कोलैबोरेशन की गई एक कंपनी के नाल टू ट्रेन 1 लाख अंडर डिजर्वड वूमेन इन इंडिया ओवर द नेक्स्ट 10 मंथ्स। अगले 10 महीनों के 1 लाख तो ज़्यादा वूमेनस नूं स्किल डेवलप किया जाएगा, स्किल के रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाएगी। किहड़ी कंपनी के नाल मिलके? माइक्रोसॉफ्ट के नाल पार्टनरशिप की गई है, माइक्रोसॉफ्ट के नाल। ठीक है जी। माइक्रोसॉफ्ट के बारे याद रखना है, सत्या नंडेला इस दे हैड ने। इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं गूगल की, तो गूगल के CEO सुंदर पिचई ने याद रखना है। और गूगल दोबारा गूगल के रिलेटेड होर की याद रख सकते हैं? गूगल के रिलेटेड होर की याद रख सकते हैं? रिसेंटली गूगल ने एक गूगल पे के नाल रिसेंटली पार्टनरशिप की गई सी। मेरे माइंड च स्किप कर रहे, चलो नैक्सट टाइम डिस्कस करांगे। नैक्सट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन राइट्स ऑफ द टाइटल स्पॉन्सर फॉर 2020 वुमेन्स T20 चैलेंज बाय BCCI। बेसिकली BCCI बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया, इसने की किया? इसने अनाउंस किया। पहले बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया का हैडकुआटर याद रख लेने, मुंबई के विच है। दूसरा बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया के हैड ने 39 नंबर के प्रेजिडेंट ने सौरभ गांगुली। 2 फैक्ट्स याद रखने ने। इस तो इलावा सौरभ गांगुली बारे याद रखना है, इन्हों अपॉइंट किया गया सी टोक्यो ओलंपिक्स के लिए गुडविल एंबेसडर। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक्स है जिहड़ा, टोक्यो ओलंपिक्स नूं किहड़ी कंपनी स्पॉन्सर करेगी? इंडियन टीम नूं किहड़ी कंपनी स्पॉन्सर करेगी? INX कंपनी स्पॉन्सर करेगी। ये सारे फैक्ट्स याद रखने ने। और वूमेन्स T20 चैलेंज जिस तरीके नाल IPL कंडक्ट किया गया UAE दे विच ऑर्गेनाइज किया गया, सिमिलर तरीके नाल आपां डिस्कस किया सी कि वूमेन्स T20 चैलेंज भी UAE दे विच ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और इस दे लई जियो नूं, फोर्थ ऑप्शन, जियो नूं की बनाया गया? स्पॉन्सर बनाया गया, टाइटल स्पॉन्सर बनाया गया। ठीक है जी। UAE दे विच जिहड़ा IPL कंडक्ट किया गया उसके स्पॉन्सर सीगे ड्रीम 11 नूं स्पॉन्सर बनाया गया सी। वैसे हर साल IPL के स्पॉन्सर वीवो होंदे ने। इस साल इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट के कारण वीवो नूं ना बना के ड्रीम 11 नूं स्पॉन्सर बनाया गया। ठीक है जी, सारे फैक्ट्स याद रखने। नेक्स्ट है, विच कंट्री अनाउंस टू सैटअप वर्ल्ड हाईएस्ट एल्टीट्यूड डाटा सेंटर? वर्ल्ड का हाईएस्ट एल्टीट्यूड डाटा सेंटर बनाया जाएगा। किहड़ी कंट्री ने अनाउंस किया है? चाइना ने अनाउंस किया। चाइना ने कहा कि यह तिब्बत दे विच वर्ल्ड का हाईएस्ट एल्टीट्यूड डाटा सेंटर बनाएगी। ठीक है, और शॉकिंग न्यूज़ यह है कि इसने कहा कि यह सिर्फ अपनी कंट्री दी लई नहीं, चाइना वर्ल्ड का हाईएस्ट एल्टीट्यूड डाटा सेंटर तिब्बत दे विच नेपाल नूं भी प्रोवाइड करवाएगी,
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਏਗੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਏਗੀ ਔਰ ਕੁਝ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰੇਜ ਇਕੱਲਾ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨੇਪਾਲ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਡਾਟਾ ਉੱਥੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਵਰਲਡ ਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਐਲਟੀਟਿਊਡ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਹਲਕੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ, ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵਰਲਡ ਦੀ ਲੌਂਗੈਸਟ ਇਮਰਸਡ ਟਨਲ, ਇਮਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਇਮਰਸਡ ਟਨਲ ਜੋ ਕਿ 18 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਹਜੇ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਓਪਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ 2029 ਤੱਕ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਫੈਮਾਰਨ ਬੈਲਟ ਟਨਲ, ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਫੈਮਾਰਨ ਬੈਲਟ ਟਨਲ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡੈਨਮਾਰਕ ਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। 18 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਟਨਲ ਹੈ, 2029 ਤੱਕ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਹਜੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਏਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਡੈਨਮਾਰਕ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੈਪੀਟਲ ਔਰ ਕਰੰਸੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣੇਗੀ। ਡੈਨਮਾਰਕ ਕੈਪੀਟਲ ਕੋਪਨਹੇਗਨ ਹੈ, ਕਰੰਸੀ ਕਰੋਨ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਕੈਪੀਟਲ ਬਰਲਿਨ ਹੈ, ਕਰੰਸੀ ਯੂਰੋ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲੋਨ ਆਇਆ ਮੰਡਾਵਾ ਕੁਛ ਸਮਥਿੰਗ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਤਾਂ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲੋਨ ਆਇਆ। ਸਿਮਿਲਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲੋਨ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕਲੋਨ ਆਇਆ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਗੋਨੀ ਸਾਈਕਲੋਨ। ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗੋਨੀ ਸਾਈਕਲੋਨ ਨੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਕੈਪੀਟਲ ਮੈਟਰੋ ਮਨੀਲਾ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਔਰ ਕਰੰਸੀ ਇੱਥੇ ਪੀਸੋ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਹੈਜ਼ ਲਾਂਚ ਸਾਥ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਇਹ ਸਾਥ, ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਐਕਸ਼ਨ ਫॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल नीति आयोग द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया एक प्रोजैक्ट है ये। इस प्रोजैक्ट नूं किहड़ी स्टेट ने लॉन्च किया? अपनी स्टेट दे विच लॉन्च किया गया उड़ीसा द्वारा। किहड़ी स्टेट द्वारा? उड़ीसा द्वारा इसनूं लॉन्च किया गया। बेसिकली इस स्कीम के अंडर की है कि हैल्थ सैक्टर और एजुकेशन सैक्टर, दो सैक्टर्स के विच ज़्यादातर ध्यान दिता जाता है इस इनिशिएटिव के अंडर। और उड़ीसा ने इस इनिशिएटिव के अंडर की किया कि स्कूल्स ने जिहड़े तकरीबन 8000 स्कूल्स ऐसे लभे ने उड़ीसा ने अपनी स्टेट दे विच, जिस दे विच काफ़ी ज़्यादा लो एनरोलमेंट है कि एडमिशन काफ़ी ज़्यादा घट है, ठीक है, तकरीबन ना दे बराबर ही है। तो उन्होंने 8000 स्कूल्स नूं अनाउंस किया कि दूसरे स्कूल्स के नाल मर्ज किया जाएगा। उन्होंने 8000 स्कूल्स नूं मर्ज कर दिता जाएगा ताकि ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟਰਾ ਮਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਐਕਸ਼ਨ ਫॉर ट्रांसफॉर्मिंग ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ 8000 ਸਕੂਲਸ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੜੀਸਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ? ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੜੀਸਾ ਦੀ ਸਕੀਮਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਲੀਆ ਸਕੀਮ, ਪੀਠਾ ਸਕੀਮ, ਅੰਮਾ ਘਰੇ ਸਕੀਮ, ਸੁਨੇਤਰ ਸਕੀਮ, मोह सरकार, मोह परिवार, मोह कल्याण, मोह प्रतिभा, मोह जीवन स्कीम। जिन्नी भी मोह के रिलेटेड स्कीम्स होंगे ने उड़ीसा दी ने। रिसेंटली मोह विद्युत पोर्टल लॉन्च किया गया सी। बलराम स्कीम, गरिमा स्कीम लॉन्च की गई सी उड़ीसा दे विच। साबूजा उड़ीसा स्कीम भी लॉन्च की गई सी उड़ीसा दे विच, ठीक है जी। ये सारे फैक्ट्स याद रखने। इस तो इलावा बाकी स्टेट्स के रिलेटेड न्यूज़ ने डिस्कस करते हैं। सब तो पहले पंजाब द्वारा 100% वेवर अनाउंस किया गया मोटर व्हीकल टैक्स के उत्ते। बेसिकली 31 दिसंबर तक मोटर व्हीकल टैक्स माफ़ किया गया पंजाब द्वारा, ठीक है। हालांकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बेसिकली पंजाब के रिलेटेड कल जी न्यूज़ डिस्कस की सी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी कि SC कैटेगरी के लिए डॉक्टर बी आर अंबेडकर स्कीम लॉन्च की सी पंजाब ने। उत्तराखंड के रिलेटेड याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा ये कि इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री हुणे डिस्कस की सी प्रकाश जावड़ेकर लवे मिनिस्ट्री। इन्होंने की किया? बेसिकली उत्तराखंड गवर्नमेंट द्वारा अनाउंस किया गया कि शिवालिक एलीफेंट रिजर्व है,
उत्तराखंड ਦੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਿਹੜਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਐਕਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ 에ਅਰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਏਰੀਆ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਐਲੀਫੈਂਟ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਸ਼ੋਰਟਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਨੇ ਇਫੈਕਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਲੀਫੈਂਟ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਹੈ, ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਐਲੀਫੈਂਟ ਰਿਜ਼ਰਵ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਐਲੀਫੈਂਟ ਦੀ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੋਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ 에ਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਟੈਟਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਐਲੀਫੈਂਟ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਐਲੀਫੈਂਟ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ 에ਅਰਪੋਰਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਫੈਕਟਸ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਤ੍ਰਿਵੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਇੱਥੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਬੇਬੀ ਰਾਣੀ ਮੌਰਿਆ ਇੱਥੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਕੇਥਰੋਨ ਨੂੰ ਫਲੈਗਡ ਆਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਫਿਟ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਫਿਟ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਵਾਕੇਥਰੋਨ ਨੂੰ ਫਲੈਗਡ ਆਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਣੀਪੁਰ ਦੁਬਾਰਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਯੂਨਿਟੀ ਡੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਣੀਪੁਰ ਨੇ ਯੂਨਿਟੀ ਡੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਹੋਂਗਡੋਕਚੋਂਬਾ, ਮੇਰਾ ਹੋਚੋਂਬਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯੂਨਿਟੀ ਡੇ ਨੂੰ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਟਰਾਈਬਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਟਰਾਈਬਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟਰਾਈਬਸ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਯੂਨਿਟੀ ਡੇ ਮਣੀਪੁਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਮੇਰਾ ਹੋਚੋਂਬਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦ ਸੈਸ਼ਨ। ਗੁੱਡ ਬਾਏ।